औरतों को ईदगाह की तरफ यानी ईद की नमाज के लिए निकालना और लेकर जाना ये हम मर्दों की जिम्मेदारी है, ये वाजिब है। ऐसा नहीं है कि करें ना करें, वाजिब है। जानते बूझते हुए अगर हम ऐसा नहीं करते, इंतजाम नहीं करते हैं तो हम गुनहगार हो सकते हैं। हजरत उम्मे आतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राबिया हैं, सहाबिया हैं, कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हम औरतों को, चाहे वो हाइजा औरतों हो, कुंवारी लड़कियां हो, जो भी हो, उनको लेकर हम ईदगाह की तरफ जाएं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है और हमें इस बात का मुकल्लफ बनाया गया है कि हम औरतों को लेकर ईदगाह की तरफ जाएं। यहाँ एक इतराज भी हुआ और सहाबिया ने, उम्मे आतिया वगैरह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतराज भी किया, सवाल भी किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बाज बहनों के पास दुपट्टा नहीं है, ओढ़नी नहीं है, पर्दा करने के लिए उनके पास बुर्के नहीं है, चादर नहीं है, ऐसी सूरत में क्या करना है, उन औरतों के साथ क्या होगा? जवाब सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिन औरतों के पास और जिन बहनों के पास कपड़े नहीं है, ओढ़नी, चादर, दुपट्टे, बुर्के नहीं है, पर्दा करने के लायक वो नहीं है, उनके पास इतने कपड़े ही नहीं है, तो माशरे में दूसरी बहन को चाहिए, दूसरी औरत को चाहिए कि उस औरत को ओढ़नी दे, दुपट्टा दे, बुर्का जायद हो तो बुर्का दे, फिर भी उनको लेकर ईदगाह की तरफ जाएं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। आप समझ सकते हैं ईद की नमाज में औरतों की शिरकत के ताल्लुक से कितना ताकीदी हुक्म है। ये भी सवाल हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ औरतें हाइज़ा होती हैं, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا 30. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ جو شخص اس انداز میں اپنی زندگی کو گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اسوہ رسول سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج رمضان کی 29 تاریخ ہے، 29 تاریخ ہے رمضان کی۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس مہینے کو پایا اور پانے کے بعد پھر اس مہینے کی ان لوگوں نے قدر کی، عزت کی، ان کا خیال رکھا، رمضان کے پورے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، تراویح با جماعت کا اہتمام کیا، شب قدر میں سب بیداری کی، اور سب بیداری کر کے عبادتیں کی، دعائیں کی اللہ رب العالمین سے پورے رمضان میں، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین سے کروائی۔ تو ایسے لوگ خوش نصیب ہیں، اور جن لوگوں نے اس مہینے کو پایا اور پانے کے بعد بھی اس مہینے کی نہ تو عزت کی، نہ تو احترام کیا، نہ تو قدر کی، نہ تو روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ قیام اللیل کیا، نہ تراویح کی نماز پڑھی، نہ تو انفرادی طور پر، نہ تو جماعت کے ساتھ، نہ تو شب بیداری کی وغیرہ، تو ایسے لوگ خوش نصیب نہیں ہیں۔ بہرحال رمضان المبارک کی آج 29 تاریخ ہے، اور 29 تاریخ کے بعد ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، اور چاند نظر آنے کا زیادہ امکان ہے، اس لیے سارے لوگ آج چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ چاند اگر نظر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی کل پہلی شوال ہوگی، شوال کی پہلی تاریخ ہوگی، اور کل عید الفطر منائی جائے گی۔ اور اگر آج چاند نظر نہیں آیا تو پھر 30 روزے مکمل کرنے پڑیں گے، یعنی کل بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب تم ہلال دیکھ لو، یعنی رمضان کا چاند جب تم دیکھ لو تم روزہ رکھنا شروع کر دو۔ رمضان کا چاند دیکھ لو تو پھر روزہ رکھنا تم شروع کر دو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھ لو تو فَأَفْطِرُوا، تو تم روزہ افطار کر دو، روزہ کو توڑ دو، روزہ توڑ دو، افطار کر دو۔ کہ مطلب یہ ہے کہ اب تم روزہ نہ رکھو بلکہ عید بناؤ، پہلی شوال کی پہلی تاریخ کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو رمضان کے روزے رکھنے کے لیے بھی چاند کا دیکھنا ضروری ہے، اور عید منانے کے لیے بھی چاند کا دیکھنا ضروری ہے۔ رمضان کے روزے کے تعلق سے اور اس چاند کے تعلق سے علماء کرام کا خیال ہے کہ ایک پکا سچا عادل مسلمان بھی اگر گواہی دیتا ہے کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا
किया है तो उनकी गवाही मानी जाएगी और फिर लोगों में ऐलान किया जाएगा कि कल से रोजा रखना है। लेकिन ईद के ताल्लुक से क्या है, 2 लोगों की गवाही का जिक्र है। उलमा लिखते हैं कि ईद के चांद के ताल्लुक से कम 2 पक्के सच्चे मुसलमान, और पक्के सच्चे मुसलमान जो आदिल हो और झूठ ना बोलते हो माशरे में, जिनके ऊपर लोगों का एतमाद हो कि आदमी झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलेगा, फरार नहीं करेगा, इनकी जुबान से जो बात निकलती है वो बरहक निकलती है, सच ऐसे लोगों की गवाही का एतबार है। ऐसा नहीं कि कोई भी आम आदमी क्या है आपको बता दे कहाँ हमने चांद देख लिया है और क्या है माशरे में वो आदमी मोतबर नहीं है, दिन भर में 50 सैकड़ों हजारों किया वो झूठ बोलता है। तो ऐसे लोगों की गवाही का एतबार शरीयत ने नहीं किया है। आदिल होना चाहिए, पक्का सच्चा मुसलमान होना चाहिए, इसका क्या है उलमाए किराम ने जिक्र किया है। तो ईद की चांद के लिए 2 लोगों की गवाही, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि रमजान का चांद देखो तो तुम रोजा रखना शुरू कर दो, और जब तुम ईद का यानी शव्वाल का चांद देख लो तो फअफ्तिरू, अब तुम इफ्तार करो यानी ईद मनाओ, अब रोजा रखने की जरूरत नहीं है। फाइन हुम अलैकुम फअतमिलु 30। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अगर आसमान अब्र आलूद हो, बदली छाई हुई हो, और इसकी वजह से क्या है चांद अगर तुम्हें नजर ना आए, बदली छा जाने की वजह से चांद अगर नजर ना आए, अब आलूद है आसमान, चांद नजर नहीं आया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फअतमिलु 30 दिन पूरे कर लेने, 30 रोजे अब आपको रख लेने हैं, और उसके बाद अब चांद देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अरबी का जो महीना होता है वो 29 का होता है या तो फिर 30 का होता है, ना तो 28 का होता है ना तो 31 का होता है। इसलिए 29वीं तारीख को चांद देखना चाहिए। चांद नजर आ गया तो अगले रोज ईद होगी, चांद नजर नहीं आया तो 30 रोजे पूरे करने हैं शरीयत के उसूल के मुताबिक, उसके बाद फिर चांद देखने की जरूरत नहीं। अगले दिन 1 तारीख होगी शव्वाल की, फिर ईद मनाई जाएगी। ये शरीयत का उसूल है, ये शरीयत के निजाम है, ये जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो ये चांद देखने के ताल्लुक से बताया गया। बाज लोग ये बयान करते फिरते हैं कि ये चांद, ये जो नजर आया ये चांद तो बहुत बड़ा लग रहा था। देखिए लोगों के अंदर सुबह किस तरह से शैतान दिलों में डालता है, उनको बहकाता है, रास्ते से किस तरह से क्या है गैर शऊरी तौर पर शैतान लोगों को भड़का देता है, गैर शऊरी तौर पर। इसलिए इल्म रखना जरूरी है। इल्म जिनके पास है शैतान उनको भटका नहीं सकता है राह रास्ते से, क्योंकि उनका इल्म उनको बचाएगा। और जिनके पास इल्म नहीं है, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार आबिद जाहिद है, शैतान कभी भी उनको क्या है कदम फिसला सकता है, सीधी राह से भटका सकता है और गुमराही के रास्ते में डाल सकता है, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। शैतान जो उनको सुझाव दे दी कि ये बहुत नेकी का काम है, ये बहुत सवाब का काम है वगैरह, क्योंकि वो आबिद है, जाहिद है, मुत्तकी है, नेकियों की करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन इल्म नहीं है, तो शैतान ने बहकाया कि ये भी नेकी के काम को चल पड़ा उसकी तरफ, भाग किया हो। बहरहाल बुजुर्गों की एक लंबी क्या है तारीख है, इसके ताल्लुक से मैं फिर जाना नहीं चाहता। इल्म क्या है बहुत अहम चीज है, ये मैं बयान कर रहा था। तो अल्लाह तो लोग बाज लोगों के अंदर ये शुरूक व शुबहात होते हैं कि रमजान का चांद जो नजर आया ये बड़ा लग रहा था, यानी 2 दिन का चांद लग रहा था या तो तीसरे दिन का चांद लग रहा था। इन उनका कहने का मकसद ये है कि एक रोजा हम लोगों से छूट गया है, ये चांद एक दिन पहले का है, एक रोजा छूट गया है, ये हमको बाद में कज़ा करनी चाहिए। ये ना इल्मी की बुनियाद पर लोग ऐसा कहते हैं। आइए सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबूल बख्तरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस को बयान करते हैं, गौर से सुनिएगा ताकि ये जो इसके ताल्लुक से शुबहात लोगों के अंदर है वो खत्म हो जाए और इस तरह से गलत बयानी लोगों में ना करते फिरें और लोगों में गलत इल्म ना बांटे। तो अबूल बख्तरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग क्या है मकाम बतहा में उतरे,
गालिबन उमरा करने की गर्ज से जा रहे थे। मकाम बतहा में हम लोग उतरे, इतने में क्या है हमने चांद देखा। ये रमजान का हमने क्या है चांद देखा। बहरहाल फिर कुछ लोग आए और उन लोगों ने आकर कहा कि चांद हम लोगों ने देखा और ये चांद क्या है, ऐसा लग रहा है कि दूसरे दिन का है या तीसरे दिन का। शुबुक पैदा कर दिया उन लोगों ने, ये तीसरे दिन का चांद लग रहा है या दूसरे दिन का चांद लग रहा है, यानी चांद बड़ा नजर आ रहा है, ये आज का चांद नहीं लग रहा। इसलिए क्या है एक रोजा हम लोगों का गोया के छूट गया है, एक रोजा छूट गया है, ऐसा हदीस में नहीं है, वो अपनी तरफ से आपको बयान कर रहे हैं समझाने के लिए। हदीस में यह है कि दूसरे दिन का चांद है या तीसरे दिन का चांद है। बहरहाल वहां इख्तलाफ हुआ कि चांद देखने वालों ने चांद देखा, दूसरे लोगों ने क्या उसने कह दिया ये तीसरे दिन का या दूसरे दिन का चांद लग रहा है। अब लोगों के अंदर से बात पैदा हो गई, क्या किया जाए, चांद तो बहुत बड़ा नजर आ रहा है। आए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास साहबी रसूल, उनके पास इसका जिक्र किया कि ऐसा और ऐसा मामला कि चांद हम लोगों ने देखा मकाम बतहा में जब उतरे। फिर बाज ने ऐसा और ऐसा कहा कि चांद क्या है बहुत बड़ा नजर आ रहा है, दूसरे दिन का है या तीसरे दिन का चांद है। हम लोग कंफ्यूज हो गए, सुको को सुबह में मुब्तला हो गए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को बतलाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से बतलाया है। ये सुनने और समझने की जरूरत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से क्या बतलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि अल्लाह ताला कभी कभी चांद को बड़ा कर देता है, होता उसी दिन का चांद है, वो पहली तारीख है, पहला चांद है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि लोग आसानी चांद को देख सकें, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चांद को बड़ा कर देता है ताकि लोग आसानी से देख लें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया। क्या मालूम हुआ इस हदीस से कि पहले दिन चांद आपको नजर आता है, बड़ा नजर आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि चांद ये दूसरे दिन का है या तीसरे दिन का है, चांद पहले ही दिन का है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस चांद को बड़ा कर दिया है आपको दिखाने के लिए ताकि आप बआसानी उस चांद को देख सकें। इसलिए चांद का छोटा नजर आना या चांद का बड़ा नजर आना, इसकी वजह से ये सुबह नहीं पैदा करना है कि ये तीसरे दिन का चांद है या दूसरे दिन का चांद है। बहरहाल हदीस की रोशनी में मसला साफ हो गया कि चांद बड़ा नजर आया, इसके बावजूद आपको सुबह और सुबह मुब्तला नहीं होना चाहिए कि दूसरे या तीसरे दिन का चांद है, वो पहले ही दिन का चांद है। और सारे लोगों ने क्या उस चांद को उसी दिन देखा, उसी दिन देखा है। अगर उससे पहले के चांद होता कहीं न कहीं क्या है वो चांद कोई ना कोई जरूर देखता, लेकिन ऐसी कोई खबर कहीं से नहीं है, कोई इत्तलात कहीं से नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसी दिन का चांद है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना करके दिखाया। ये चांद के देखे जाने के ताल्लुक से आपको बतलाया गया। तो चांद देखने के ताल्लुक से इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि चांद हम बाकायदा तौर पर देखें। तो आज का खुतबा आदाब ईद के ताल्लुक से क्या है मुश्तमिल होगा कि ईद इंशाअल्लाह ताला आज अगर चांद नजर आ जाता है तो कल ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। ईद के आदाब क्या है, एक तो चांद देखने के ताल्लुक से मैंने आपको बतलाया। अब आदाब में आते हैं कि ईद के ताल्लुक से ईद के दिन हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उनका एक अपना अमल है कि ईद के दिन वो गुस्ल किया करते थे, फिर ईदगाह की तरफ जाते थे। उनके इस अमल से ये मालूम हुआ कि ईद के दिन गुस्ल करना क्या है, ये मुस्तहब है। अल्लामा इब्न क़ुदामा लिखते हैं कि ईद के दिन गुस्ल करना ये मुस्तहब है, बेहतर है, अच्छा है कि इंसान गुस्ल करे, खुशबू लगाए, इत्र लगाए, ये मुस्तहब है। तो सहाबा की सुन्नत और सहाबा के असर से ये मालूम हुआ कि ईद के दिन गुस्ल करने के बाद ईदगाह की तरफ जाना चाहिए, ईद के दिन खुशबू वगैरह लगाना चाहिए। ईद के दिन क्या है, उम्दा से उम्दा लिबास ज़ेबे तन करना चाहिए, उम्दा से उम्दा लिबास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक हदीस में बयान मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ईद के लिए धारीदार चादर रखा करते थे जिसको ज़ेबे तन ओढ़ा करते थे ईद के दिन।
عید کے دن کے لیے کیا ہے آپ رکھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ عید کے دن عمدہ سے عمدہ کپڑا انسان کو رکھنا چاہیے عید کے لیے، اور عید کے دن اس کا استعمال کرنا چاہیے، عمدہ بہتر سے بہتر کپڑا۔ اب جن کے پاس اگر میسر نہ ہو تو ان کے پاس جو کپڑے ہیں انہی میں سے جو عمدہ کپڑا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نئے کپڑے ہونے ہی چاہیے عید میں۔ اگر فراوانی ہے، پیسے ہیں، روپیے ہیں، اللہ نے وسعت دی ہے تو نئے کپڑے سلوا لیں، بہتر ہے۔ اگر نئے کپڑے اگر نہیں سلوا پاتے ہیں تو آپ کے پاس جو کپڑے ہیں انہی میں سے جو کپڑے عمدہ ہیں، بہتر ہیں، ان کا آپ استعمال عید کے روز کریں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تعلق سے یہ سنت ہے کہ عید کے دن بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ کپڑے کا استعمال کرنا چاہیے، خوشبو استعمال کرنا چاہیے، غسل کیا ہے کرنا چاہیے، اس کے بعد عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف چلنا چاہیے، پیدل چلنا چاہیے۔ پیدل جانا یہ سنت، سواری میں سوار ہو کر یہ سنت نہیں ہے، پیدل جانا یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ہے ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس ہوں، یہ سنت طریقہ بتلایا گیا ہے۔ تو عید کے دن کا ایک طریقہ اور ایک ادب تو یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جائیں گے، دوسرے راستے سے کیا ہے واپس آئیں گے۔ پھر تکبیرات عید کے تعلق سے کیا ہے منقول ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب جائیں تو تکبیرات کو پڑھتے ہوئے جائیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، تکبیرات کو پڑھتے ہوئے جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات عید ہیں۔ ان کو کیا ہے انسان کو پڑھتے ہوئے عید کے لیے جانا چاہیے، اور عید کی نماز جب تک پڑھ نہ لے تب تک یہ تکبیرات ان کو کہتے رہنا چاہیے، مرد بھی عورتیں بھی۔ اور جب عید کی نماز ہو جائے تو پھر ان تکبیرات کا کہنا اب چھوڑ دیں۔ یہ کیا ہے سنت صحابہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ لوگ تکبیرات کہتے ہوئے جاتے تھے، عید کی نماز پڑھے جانے تک تکبیرات کہتے تھے، عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر تکبیرات نہیں کہتے تھے، یہ عید الفطر میں۔ تو یہ کیا ہے سنت طریقہ ہے، ان تکبیرات کو یاد کر لیں، جن کو یاد نہیں ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرا ادب کا پہلو عید کے دن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے تعلق سے یہ ہے کہ عید الفطر کے دن جب عید کی نماز کے لیے جاتے اللہ کے رسول تو تاک کھجور کھا لیا کرتے۔ تاک کھجور، تاک مطلب جیسے 1 ہوا 3 ہوا 5 ہوا 7 ہوا، اس کو تاک بولتے ہیں، بیجور۔ تاک کھجوریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاک عدد میں کھجوریں کھا لیتے تھے، پھر عید کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ قربانی میں اللہ کے رسول کی سنت یہ ہوتی تھی آپ کچھ کھائے پیے بغیر عید کی نماز کے لیے نکل جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ عید کی نماز پڑھ لیتے تھے، پھر واپس آتے تھے، اور آنے کے بعد پھر جو جانور میسر ہوتا ان کی قربانی کرتے، پھر اس کا گوشت کیا ہے سب سے پہلے آپ تناول فرماتے۔ یہ عید الاضحیٰ قربانی کے دن کی سنت ہے کہ اس دن کھائے پیے بغیر عید کی نماز کی طرف اللہ کے رسول جاتے، اور عید الفطر میں تاک عدد کھجوریں کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جاتے۔ تو عید کی نماز کی طرف جانے کا ایک ادب یہ ہے کہ کھجور کا ہم استعمال کر لیں تاک عدد میں۔ اور ماشاءاللہ آج کے ڈیٹ میں ہر جگہ ہر گاؤں میں کیا ہے کھجوریں میسر ہیں، اپلبدھ ہیں، بآسانی ہم اور آپ خرید سکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ کھجوریں نہیں ملتی تھی، بامشکل بڑے شہروں میں ملتی تھی، لیکن آج کے وقت میں شہر نہیں ہر گاؤں دیہات کے بلکہ ہر دکان میں تقریباً کھجوریں مل جائیں گی۔ تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ کھجور خرید لے، اور عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے تاک عدد میں کیا ہے کھجوروں کا استعمال کر لے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ جن کے پاس کھجور نہیں میسر ہے، کھجور نہیں خرید
सका, या उनको नहीं मिला, या उनके पास पैसे नहीं हुए, अलबत्ता कोई भी मीठी चीज वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवई हो, लच्छा हो, वगैरह हो, वो मीठी चीज इस्तेमाल कर सकते। लेकिन सुन्नत तरीका अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके ताल्लुक से ताक आदत में खजूरों का खाना और इस्तेमाल करना है। ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इसके ताल्लुक से रखता है। ईद के ताल्लुक से एक अदब का पहलू ये भी है कि ईद की नमाज मर्द और औरत एक साथ इकट्ठे इनको अदा करने का हुक्म दिया गया है शरीयत में, अलग अलग नहीं। जैसा कि हमारे मुआशरे में क्या है कि रिवाज चल पड़ा है, ये रिवाज निकल गया है कि मर्द हजरात ईदगाह में जाके नमाज तो पढ़ लेते हैं और औरतें उस ईदगाह में शरीक नहीं हो पाती हैं, या मर्द उनका इंतजाम नहीं करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा तरीका नहीं था, ऐसी चीज नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मर्द और औरत सारे लोग ईदगाह में जमा होते थे और इकट्ठे इस नमाज को पढ़ते थे। इसलिए इकट्ठा पढ़ने का हुक्म है इस नमाज को। जहां ईदगाह मुयस्सर नहीं है, मस्जिद वहां बड़ी है, तो मस्जिद में मर्द औरत इकट्ठे जमा होकर इस नमाज को अदा कर ले। जहां ईदगाह मुयस्सर है वहां क्या है, लोग ईदगाह बाकायदा जाए और औरतों का वहां एहतमाम करें कि मर्द हजरात आगे हो, उसके बाद फिर औरतों की सफ लगे, पर्दे का एहतमाम कर दिया जाए। सुन्नत तरीका ये है, बेहतर तरीका ये है, औरतों को ईदगाह की तरफ यानी ईद की नमाज के लिए निकालना और लेकर जाना ये हम मर्दों की जिम्मेदारी है, ये वाजिब है। ऐसा नहीं है कि करें ना करें, वाजिब है। जानते बूझते हुए अगर हम ऐसा नहीं करते, इंतजाम नहीं करते हैं, तो हम गुनहगार हो सकते हैं। हजरत उम्मे आतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राबिया है, सहाबिया है, कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हम औरतों को, चाहे वो हाइजा औरतों हो, कुमारी लड़कियां हो, जो भी हो, उनको लेकर हम ईदगाह की तरफ जाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है और हमें इस बात का मुकल्लफ बनाया गया है कि हम औरतों को लेकर ईदगाह की तरफ जाएं। यहाँ एक इतराज भी हुआ और सहाबिया ने, उम्मे आतिया वगैरह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतराज भी किया, सवाल भी किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बाज बहनों के पास दुपट्टा नहीं है, ओढ़नी नहीं है, के पास बुर्के नहीं है, चादर नहीं है, ऐसी सूरत में क्या करना है, उन औरतों के साथ क्या होगा? जवाब सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिन औरतों के पास और जिन बहनों के पास कपड़े नहीं है, ओढ़नी, चादर, दुपट्टे, बुर्के नहीं है, पर्दा करने के लायक वो नहीं है, उनके पास उतने कपड़े ही नहीं है, तो मुआशरे में दूसरी बहन को चाहिए, दूसरी औरत को चाहिए कि उस औरत को ओढ़नी दे, दुपट्टा दे, बुर्का जायद हो तो बुर्का दे, फिर भी उनको लेकर ईदगाह की तरफ जाएं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। आप समझ सकते हैं ईद की नमाज में औरतों की शिरकत के ताल्लुक से कितना ताकीदी हुक्म है। ये भी सवाल हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज औरतें हाइजा होती हैं, माहवारी में मुब्तला है, वो कैसे जाएंगी, वो क्या करेंगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका भी गाइडलाइन बतलाया, इनका भी रास्ता बतलाया कि इन औरतों को भी लेकर जाना है जो हाइजा हो चुकी हैं, माहवारी में मुब्तला हो चुकी हैं, पीरियड उनका शुरू हो चुका है, ऐसी औरतों को भी लेकर जाना है, इनको नहीं छोड़ना है। मुसलमानों की जमात में औरतें शरीक होंगी, नमाज में शरीक नहीं होंगी, दूसरे क्या है उमूर खैर में शरीक होंगी, दुआओं में शरीक होंगी, नमाज नहीं पढ़ेगी वो, लेकिन जाना है उनको ईदगाह। ये ताकीदी हुक्म है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जबकि उनके ऊपर नमाज क्या है ही नहीं, इसलिए कि हालत हैज में है, हालत लिबास में है, तो फिर क्या है ईदगाह जाकर उनका क्या फायदा होगा जबकि नमाज उनसे साकित हो चुकी है, नमाज अब उनके ऊपर रही नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, दूसरे मुसलमानों के जो पूरे खैर है, जो खैर के काम है, और मुसलमान जो वहां पर दुआ करें, इन दुआओं में ये औरतें शरीक होंगी, नमाज से अलग थलग रहेंगी, लेकिन दुआओं में शरीक होंगी, उमूर खैर में शरीक होंगी। मालूम ये हुआ इस हदीस से ताकीदी हुक्म हमें ये मिला कि ये ईद की जो नमाज है, जहां मर्दों के लिए क्या है जरूरी है एक पढ़ना एक साथ, वहां औरतों को भी एक साथ ले जाकर पढ़ना जरूरी है। ये नमाज वाजिब है। उलमा ने लिखा है कि
कि ईद की नमाज ये वाजिब है। जिस तरह से पंज वक्त नमाज क्या है, वाजिब है, जुमा की नमाज वाजिब है, इसी तरह से ईद की नमाज भी वाजिब है। ऐसा नहीं है कि हमारे इख्तियार में है कि हम छोड़ दिए। बाज़ उलमा ने सुन्नत मुअक्कदा भी कहा है, लेकिन उनके पास सुन्नत मुअक्कदा होने की कोई दलील नहीं है। बड़े बड़े उलमा ने अल्लामा क्या है नासिरुद्दीन अलबानी वगैरह और इमाम शौकानी वगैरह और दूसरे उलमा, इन लोगों ने कहा कि ये ईद की नमाज फर्ज ऐन है, वाजिब है, मर्द को भी पढ़ना जरूरी है, औरत को भी पढ़ना जरूरी है, और एक साथ ये नमाज क्या है, सुन्नत रसूल के मुताबिक पढ़ी जाएगी। दलील उन लोगों की है और मजबूत दलील है, कभी दलील है। एक दलील तो यही हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया कि उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो कहा कि अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि हम औरतों को, दोशीज़ाएं हो, जवान लड़कियां हो, औरतें हो, हाइज़ा औरतें हो, इन सबको लेकर हम ईदगाह की तरफ निकले। अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है। ये हदीस इस बात की दलील है कि जो औरतें हाइजा हैं इसके बावजूद क्या है उनको ले जाने का जब हुक्म मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नमाज मामूली नहीं है, ये नमाज फर्ज ऐन है, ये नमाज वाजिब है। अगर ये नमाज वाजिब ना होती, सिर्फ सुन्नत होती, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को क्या है इस हालत में जो महामारी में मुब्तला है, पीरियड में मुब्तला है और खून उनको आ रहा है, हैज में मुब्तला है, उनको जाने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म नहीं फरमाते, बल्कि फरमाते आप घर में बैठी रहो क्योंकि आप इस हालत में हैं, आपके ऊपर तो नमाज ही नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, आपको जाने का हुक्म दिया। तो ये दलील है उलमा का जो कहते हैं कि ईद की नमाज वाजिब है, उनकी ये दलील है, ये दलील मजबूत। दूसरी दलील ये है इन उलमा की कि ईद की नमाज ये वाजिब है, फर्ज ऐन है। दलील ये है कि ये ईद की नमाज अगर जुमा के दिन पड़ जाए, हदीस में है कि जुमा के दिन पड़ जाए ईद की नमाज, तो ईद की नमाज की वजह से जुमा की नमाज साकित हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां अब इख्तियार दिया है कि ईद की नमाज तुमने बजमात पढ़ ली है, अब जुमा पढ़ना आपके ऊपर फर्ज नहीं रहा उस दिन। आप चाहे तो जुमा पढ़ ले, ना चाहे तो जुमा आप ना पढ़े, जोहर की नमाज पढ़ ले उस दिन। देखिए जुमा साबित हो रही है, ईद की नमाज की वजह से जो एक वाजिब चीज थी जुमा, वो साबित हो गई, वो उस दिन अब वो नमाज वाजिब ना रही। इमाम नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर ईद की नमाज वाजिब ना होती, फर्ज ऐन ना होती, तो एक वाजिब चीज को ये नमाज साबित नहीं कर सकती थी। एक सुन्नत चीज एक वाजिब चीज को साबित नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये है कि ईद की नमाज ये वाजिब है। यही वजह है कि उस दिन अगर जुमा पढ़ता है तो जुमा की नमाज का पढ़ना वाजिब नहीं होता है। ईद की नमाज ने उनको साबित कर दिया। ये दलीलें हैं और मजबूत दलीलें हैं, कई दलीलें हैं। इसलिए इन उलमाए किराम की दलीलों को सामने रखते हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखते हुए, सहाबाए किराम की सुन्नत और अमल को सामने रखते हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने ईदैन की नमाज को कभी छोड़ा नहीं है। हमेशा आपने पाबंदी के साथ ईद की नमाज पढ़ी है। इसलिए हम सब पर भी ये नमाज फर्ज है और वाजिब है, फर्ज ऐन है कि हम भी इस नमाज को सुन्नत रसूल के मुताबिक अदा करेंगे और इसको फर्ज ऐन ही समझेंगे, फर्ज ऐन ही समझेंगे, फर्ज किफाया नहीं समझेंगे। जैसा कि बाज़ उलमा ने क्या है इसको फर्ज किफाया कहा है। फर्ज किफाया का मतलब ये होता है जैसे जनाजा की नमाज क्या है, ये फर्ज किफाया है। किफाया का मतलब ये हुआ कि गांव के चंद लोग अगर क्या है जनाजे में शरीक हो गए, पढ़ लिए, गांव के सारे लोग अगर नहीं गए, कोई मुजाहिदा नहीं है, कोई गुनहगार नहीं है, चंद लोग अगर जनाजे में शरीक हो गए तो गांव के सारे लोगों की तरफ से ये किफायत कर गई है, नमाज सबके लिए काफी हो गया। अलबत्ता जिसने क्या है नमाज पढ़ी, नमाज जनाजा, मिट्टी दिया, उनको नेकी मिलेगी। लेकिन जिसने नमाज ये नहीं पढ़ी, मिट्टी नहीं दिया, उसको नेकी नहीं मिलेगी, लेकिन गुनहगार नहीं होगा। लेकिन एक पक्का सच्चा मोमिन का इंतकाल होता है और गांव के सारे लोग अगर क्या है उसकी नमाज जनाजा में शरीक नहीं होते हैं तो फिर सारे लोग गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए एक मोमिन के लिए नमाज जनाजा जरूरी है। तो फर्ज किफाया मैं आपको समझा रहा था
कि ये जनाजे की नमाज फर्ज किफाया है, गांव के चंद लोग पढ़ लेते हैं, बाकी लोग अगर नहीं पढ़े तो गांव का कोई आदमी गुनाहगार नहीं होगा, सबकी तरफ से ये काफी हो गया, ये फर्ज किफाया। लेकिन ईद की नमाज का मामला ऐसा नहीं है कि गांव के चंद लोग अगर पढ़ लिए और कुछ लोग बाकी रह गए और उन्हें सो फलान फलान तो पढ़ लिया है काफी हो गया, ऐसा नहीं। ये नमाज वाजिब है, फर्ज ऐन है। तो मैं आपको फर्ज ऐन और फर्ज किफाया समझा रहा था सीधे साधे अल्फाज में, और मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो ईद की नमाज ये वाजिब है, फर्ज है, इसका ख्याल हमें रखते हुए अपनी औरतों को भी साथ में लेके इस नमाज के लिए आना है। मैंने बतलाया जिस तरह के क्या है, जहां पर ईदगाह मुयस्सर है वहां के मर्दों की जिम्मेदारी बनती है और ईदगाह कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि औरतों का वो एहतमाम करे और औरतों को साथ में लेकर जाए, एक साथ की नमाज अदा करे। और जहां ईदगाह नहीं है, जैसे हमारे यहाँ ईदगाह नहीं है, ईदगाह है दूसरे गांव में बहुत दूर है, जाने में परेशानियां हैं, मशक्कतें हैं, तो हम लोग मस्जिद में इस नमाज को अदा कर लेते हैं और जायज है। तो हम सब क्या है एक साथ मर्द औरत इस नमाज को मस्जिद में इकट्ठा क्या है अदा करते हैं, और अदा करना हमारा क्या है ये सही होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं ईद की नमाज के ताल्लुक से मस्जिद में पढ़ना, ईदगाह में पढ़ने के ताल्लुक से क्या है बयान फरमाते हैं कि ईद की नमाज मर्द और औरतों को इज्तिमा यानी एक साथ पढ़ने का जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है और आपने जो पढ़ा है, अगर मस्जिद क्या है बड़ी हो, गुसादा हो, मर्द औरत उसमें क्या है सब समा सकते हैं, एक साथ क्या है नमाजें वहां पढ़ी जा सकती हैं, तो बेहतर है कि एक साथ। यही मकसूद है शरीयत का। इमाम शाफी कहते हैं कि शरीयत का यही मकसूद है कि एक इकट्ठे ये नमाज पढ़ लिए जाए। अगर ये मुमकिन मस्जिद में है तो मस्जिद में पढ़ लिया जाए, और मस्जिद में पढ़ने को उन्होंने अफजल कहा है, यानी बेहतर कहा है कि मस्जिद अगर कुसादा है, मर्द औरत का इज्तिमा हो रहा है, मुमकिन है, जगह है, वहीं पर लेना बेहतर है। लेकिन दूसरे उलमा क्या है जिनके यहाँ ईदगाह है बाकायदा तौर पर, वहां ईदगाह में जाकर क्या है ईद की नमाज मर्द औरत का एक साथ पढ़ना बेहतर है। ये कुल्ली तौर पर नहीं है कि सामने आपका क्या है ईदगाह रहते हुए मुयस्सर है, अब इसके बावजूद क्या है आप क्या है मस्जिद पर आए, ये सुन्नत के खिलाफ है। जहां ईदगाह नहीं है उनके लिए परेशानियां हैं, ईदगाह दूर है, जाने में परेशानियां हैं, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बूढ़ी औरतों के लिए और भी औरतों के लिए, वहां क्या है मस्जिद कुसादा हो, एक साथ जमात कर ले तो उनके लिए क्या है ये काफी है। ये मैं बता रहा था, और इमाम शाफी यही नुक्ता समझाने की कोशिश करते हैं कि शरीयत का मकसूद क्या है, मर्द औरत का इकट्ठे होकर इस नमाज को पढ़ लेना है, और अगर मस्जिद में ये गुंजाइश हो जाती है उनका यहाँ पर लेना बेहतर है, अफजल है। बहरहाल ईद की नमाज के ताल्लुक से मर्द औरत का इकट्ठा पढ़ने के ताल्लुक से मैं बता रहा था आपको, तो उनमें अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस और उनके बयान के मुताबिक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसके ताल्लुक से बयान किया कि इस नमाज के लिए हमें हुक्म दिया गया कि हम दोशीज़ाएं औरतों और दोशीज़ाएं यानी लड़कियों को भी हम साथ लेकर जाएं, हाइज़ा औरतों को भी साथ लेकर जाएं, और ईद की नमाज में उनको भी हम शरीक करें। जिनके पास दुपट्टे बुर्का वगैरह ओढ़नी ना हो तो हम दूसरे बहनों को चाहिए उनको हम चादर बुर्का वगैरह दे, फिर भी साथ उनको लेकर जाए। ये ईद की नमाज के ताल्लुक से क्या है चंद बुनियादी क्या है आदाब मैंने आपको बतलाए। और एक चीज है ईद की नमाज